Good morning, students. Today is 20th May 2021, and we'll be taking how do you write the definition of the function. So, defining function. We have already seen functions, declaration of functions, definition of function in C programming. Again, I'll repeat. Function is the set of instructions which performs a particular task. एक particular task perform करने के लिए functions को लिखा जाता है. So the way the function should be written, इसके लिए तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. एक रहता है function prototype और function declaration. Second is function definition, and third is function calling or call a function. So let's see how do you write the declaration of the function or the prototype of the function. Okay, the syntax for the function prototype or declaration. It is return type, function name, and argument list. This is also called as parameter, or it is called as parameter. Okay. So, and terminated by semicolon. So if you are declaring a function or writing a prototype of the function, what you have to do, you have to write the syntax. Syntax is return type. Return type is any data type. Return type क्या होगा? कोई भी data type रहेगा. Function का नाम रहेगा, ठीक है? Identify naming convention follow करना है. Then within bracket the argument list. Arguments जो आपको उसको पास करना है. तो यहाँ argument में क्या लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट में भी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर में हम क्या लिखेंगे? हम डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करेंगे. डेटा टाइप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे. डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम, कॉमा डेटा टाइप वेरिएबल नेम. ठीक है. तो रिटर्न टाइप क्या होता है? कोई डेटा टाइप. फंक्शन का नाम कोई भी आइडेंटिफायर होगा जो उसको रूल्स को फॉलो करेगा. देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स. डेटा टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? इंट हो सकता है, कैर हो सकता है. ये जो होता है रिटर्न टाइप, इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल. ओके, बूल हो सकता है यहाँ पे C++ में. अगर ये कुछ नहीं रिटर्न करता तो हम वॉइड लिखते हैं, और अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज वॉइड. सो रिटर्न टाइप इज एनी डेटा टाइप. इफ द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग वी राइट वॉइड. देन द फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम जो भी हमको स्पेसिफाई करना है. फंक्शन का नाम जो है आइडेंटिफाई नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेगा. गेट डेटा जो है वो स्पेस नहीं आएगा, अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड होगा जैसे हमने क्लास नेम में देखा था. और अगर ये पैरामीटर में कुछ नहीं दिख रहा है इट मींस वॉइड. इट मींस देयर इज नो पैरामीटर व्हिच दिस फंक्शन इज टेकिंग. तो ये फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है. दिस इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन. Semicolon termination means that the declaration of the function is now complete. So if it is taking parameter, suppose integer parameter लिखा है, तो integer r, तो r is a integer type variable which is passed as a parameter to the function that is get data. Get data को function को as a parameter ये r variable pass कर रहे हैं. okay. हमारा जो प्रॉब्लम था उसमें हमने कौन से फंक्शन लिए थे? get tid. तो get empty bracket. Okay. So this is the prototype for get tid which we have already written within the class. Similarly put tid. Similarly get name. ये function prototype हो गया, function declaration हो गया. name. Okay. ये हमारे function prototype हो गए जो हम class के अंदर लिखते हैं. तो function prototype or the declaration of the function means just to specify that the function is present within the class. That is being done using the function prototype or declaration of the function. Second is function definition. Function definition लिखने के दो तरीके हैं. Function definition. Function definition लिखने के दो तरीके हैं.
way है defining a function inside the class. Second is defining the function outside the class. Today we'll be dealing only with function defining inside the class. Class के अंदर function किस तरह से define करते हैं. Tomorrow we will see how do you define a function outside the class. Function के अंदर class को define करना है तो इसका मतलब है हमको prototype लिखने की जरूरत नहीं है function की. हम डायरेक्टली डेफिनेशन लिख सकते हैं. तो अगर हमको डायरेक्टली डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ सेमीकोलन ना लगाकर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन. यहाँ पर हम फंक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं. सो फंक्शन डेफिनेशन लिखने के टाइम पे हम सी आउट मैसेजेस जो लिखना है एंटर डेटा सी इन get the data, see in roll number, see out, okay, see out, enter data, see in roll number, see out, less than, then enter name, see this should be in blue color, open, okay. So likewise we write the definition of the function. डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन लिखने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप सेमीकोलन नहीं लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में इसकी बॉडी लिखेंगे. जैसे यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड विल राइट द स्टेटमेंट सी आउट एंटर टीचर आईडी सी इन टी आईडी सी आउट एंटर नेम सी इन name. Okay, likewise you write the definition. How do we write for put data? Put data का curly bracket open curly bracket close. This is just the code I am writing. ये continuation में नहीं है, ये सिर्फ कोड मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से लिखते हैं. This is not in continuation. This is not a full program. ये आपका सिर्फ जो है कोडिंग का एक स्नैपशॉट दे रही हूँ. सी आउट टीचर आईडी को पुट किया, सी आउट नेम को पुट किया स्क्रीन के ऊपर. मैसेज के साथ में प्रिंट करना है नेम इज टीचर आईडी यस. तो यहाँ पर जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो सेमीकोलन नहीं आता है, डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन सेमीकोलन हटाकर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हम इसकी फंक्शन की बॉडी लिखेंगे. इसी तरह से ये फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, इसी तरह से ये फंक्शन की बॉडी लिखेंगे. सिमिलरली यू कैन राइट फॉर दिस. ओके, एंड द थर्ड थिंग इज व्हिच इज कॉलिंग अ फंक्शन. हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन? फंक्शन कॉलिंग किस तरह से रहता है? नाउ एज वी नो we know that function is a member of a class. Function is a member of a class. So what is the way to call the member of the class? Class के members को call करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? What do we create to call the members of the class? We cannot call the members of the class directly using the class name. So we have to create the instance of the class. What is the instance of the class? Instance of the class is called as इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड एज स्पीक आउट. इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्या होता है? कल मैंने बताया था, अगर मुझे मेंबर्स ऑफ द क्लास को कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करते हैं? क्लास के मेंबर्स को कॉल करने का क्या तरीका है? हाउ डू वी कॉल द मेंबर्स ऑफ द क्लास? वी कॉल द मेंबर्स ऑफ द क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आर द इंस्टेंस ऑफ द क्लास and the way to call the members of the class is object name dot operator function name. So this is you are calling a
फंक्शन ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर फंक्शन नेम। तो किस तरह से कॉल करना है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर फंक्शन नेम। So there are three things which we have seen today. One is writing the prototype or the declaration. Second is writing the definition, and third is calling a function. So function, prototype or declaration of the function is being written as return type. इसका syntax कैसा है, इसका syntax है return type function name argument list. अगर return type कुछ नहीं है तो यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं जैसे इस केस में, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम खाली छोड़ सकते हैं, तो ये वॉइड हो जाएगा। या फिर वॉइड कीवर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम वॉइड कीवर्ड लिख सकते हैं अगर ये कुछ नहीं लेता, और अगर ये कोई पैरामीटर लेता है तो हमको वो पैरामीटर लिखना है। We will see different types of functions. A function which takes parameter returns type, returns the value. Function which does not take parameter and returns value. We have already seen this in C programming, but we will see this also in C++. Okay. Second thing which we have seen is writing the definition of the function. जब हम function की definition लिखते हैं तो यहाँ semicolon नहीं लगाते। Prototype में सिर्फ ये वाला जो है ये prototype है जो हम क्लास के अंदर लिखते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि फंक्शन की डेफिनेशन कहीं ना कहीं प्रोग्राम में एग्जिस्ट है। अगर हमको प्रोटोटाइप नहीं लिख के डायरेक्टली डेफिनेशन लिखनी है तो वी कैन राइट डेफिनेशन लाइक दिस। थर्ड थिंग इज टू कॉल अ फंक्शन। फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन कॉल करने का तरीका है, we have to create the object of the class. Object of the class is the instance of the class. Objects are the instance of the class. These are used to call the members of the class. Members class के कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसको फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर फंक्शन नेम एंड देन एम्प्टी ब्रैकेट सेमीकोलन। So we have seen these three things. Now let's write the entire code. We will begin with hash include iostream, hash include iostream. Then we'll write the class. We have seen the class teacher, curly bracket open, and we have declared the TID as integer type and name character type. These two are declared under which access specifier. कुछ नहीं लिखना है तो किसके अंदर डिक्लेयर हुए, डेटा मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड इन अ प्राइवेट क्लास. Let's see get data function and put data function which takes no argument and returns no value. And this is the close of the definition of the user defined data type ADT, that is class. ये class user defined data type की definition close हो गई. ये दो functions है, ये फंक्शंस पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करे हैं जिन जो कोई आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं करता, कोई आर्ग्यूमेंट लेता नहीं है। ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं डेटा मेंबर्स क्लास के अंदर टीआईडी और नेम व्हिच इज डिक्लेयर्ड इन अ प्राइवेट पार्ट. नाउ लेट्स राइट नेम व्हिच इज ट्रीटेड एज आउटसाइड द क्लास. अब हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास वी हैव टू यूज क्लास नेम one space and create the object. So T is called as the object of the class teacher. T क्या है, teacher object. Teacher class का object है. Object are the instance of the class. अब T object से मुझे किसको कॉल करना है, मुझे get data और put data function को कॉल करना है. तो T dot get data ये function calling हो गया. T dot हमने इन फंक्शन की डेफिनेशन तो कुछ लिखी ही नहीं है, तो ये हमने जो तीन चीजें पढ़ी है, फर्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन और द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन. ये दोनों फंक्शन को डिक्लेयर किया. ये हो गया हमारा कॉलिंग का फंक्शन, तीसरा पार्ट जो मैंने बताया. ठीक है, और जो सेकंड है दैट इज राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. दो चीजें हैं, writing the function definition inside the class, writing the function definition outside the class. Now let's see how do we write the definition of the function inside the class. To write the definition of the function inside the class, we have to use curly bracket open and curly bracket close, and we'll write the statements. So these statements are considered as a part of the get data function. So cout enter tid
सी इन, टीचर आईडी को इन कर लिया, सी आउट, एंटर, सी इन name. Similarly, we display the value C out. डेटा में हमको प्रिंट कराना है टीचर आईडी इज मैसेज के साथ में हमने इसको पुट कराना है। टीचर आईडी इज टी आईडी, सी आउट, टीचर नेम इज, सी हियर, ये जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन क्लास के मेंबर्स हैं। दीज टू फंक्शंस आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास। These two functions are the members of the class. Get data और put data जो है वो क्लास के members हैं। तो हमने TID और name को as it is लिखा हुआ है। Okay, so get data function and put data function. तो get data function जो है उसके अंदर हमने ये TID member को कॉल किया। Get data is also a data member. Get data is member function in a class and TID is डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। ये डेटा मेंबर है क्लास का है, तो हमने टीआईडी और नेम को एज इट इज लिखा है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, क्योंकि ये क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और फंक्शन जो है वो क्लास का मेंबर है। फंक्शन इज द मेंबर ऑफ द क्लास, तो टीआईडी और नेम ये एज इट इज इसके अंदर यूज किया गया है। ये पुट डेटा फंक्शन जो है वो क्लास का मेंबर है, तो टीआईडी और नेम जो है वो एज इट इज इसके अंदर यूज किया गया है पुट डेटा के अंदर, क्योंकि ये क्लास के मेंबर्स हैं दोनों ही। पुट डेटा भी मेंबर है और टीआईडी और नेम भी है, ये जो क्लास के मेंबर्स हैं, तो इनको डायरेक्टली हमने ऐसे इस्तेमाल किए। अगर ये क्लास के मेंबर्स बाहर एक्सेसिबल हैं तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो मेन जो है वो बाहर कहलाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया टी और इसको फंक्शन को कॉल किया। अब ये फंक्शन इसमें कॉल हो पाएगा क्योंकि ये पब्लिक मेंबर के अंदर। और हम यहाँ पर सी इन जो है ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, सी इन टी डॉट टी आई डी। क्यों नहीं लिख सकते सी इन टी डॉट टी आई डी? टी आई डी इज डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट पार्ट ऑफ द क्लास। यहाँ कुछ एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा, तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होता है। अगर ये प्राइवेट है तो इसकी एक्सेसिबिलिटी विद इन द क्लास रहती है, तो क्लास के बाहर ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, ये स्टेटमेंट रॉन्ग कहलाएगी। तो ये यहाँ से हटा दिया हमने। किसको? ये सीन की स्टेटमेंट को कहाँ पे लिखा? हमने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिखा, और फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ लिखी? हमने क्लास के अंदर लिखी। तो यहाँ पर हमने प्रोटोटाइप नहीं यूज किया है, डायरेक्टली फंक्शन डेफिनेशन की है। फर्स्ट डेफिनेशन, second definition within the class, and this is calling a function in the main outside the class. To call a function outside the class we have to use object name dot operator function name. कैसे कॉल करना है? object name dot operator function name. So this is the program in which we have written the, execute करते हैं इसको, we have written the definition of the function inside the class. डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से सेव करना है, डॉट सीपीपी एक्सटेंशन आ जाता है डिफॉल्टली। using namespace std main returns nothing here for रिटर्न करना पड़ेगा अगर ओवर लिखा है तो रिटर्न 0। now run the program and we'll get the teacher id 301 and name 000।
executed and show you the result later on. So the program is executed. See here, it is executed, and I'll show you the result later on. Okay. Okay. So teacher ID T001. Okay. And we'll write the name. Space press करनी थी. नहीं, integer number है ना, TID is integer number. And different teacher ID is 1 and teacher name is this. You can give spaces here, appropriate spaces and handle. यहाँ पर आप spaces दे सकते हो और यहाँ पर handle. Handle is a manipulator जो new line character से शुरू होता है. तो ये आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई देगा नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर पे. Compile the program. Run the program. TID is 1. Teacher name TID is 1 and teacher name is Ashley. So the program is executed like this. Okay. So this is all about